Namaskar. Welcome to our YouTube channel, The Swasti Psychology. In continuation with our PYQ series, today we are starting with Unit 6, that is Thinking, Intelligence and Creativity. So let us begin. Question 1 says, Cattell and Horn's theory postulates two kinds of intelligence. A person who is good at using and combining familiar fact has high emotional intelligence, crystallized intelligence, fluid intelligence, and primary intelligence. So, now let us try to understand this question. In this particular question, they are talking about Cattell and Horn's theory. Okay, Cattell and Horn की theory की बात हो रही है. कौन सी theory? जो intelligence की theory इन लोगों ने दी थी. So they talked about two kind of intelligence in their theory. Okay, so a person who is good at using and combining familiar facts, तो हमें उस इंटेलिजेंस का नाम बताना है जिसमें व्यक्ति जो है जो ऑलरेडी फेमिलियर फैक्ट्स है उसको कंबाइन करके, उस इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, जिनको वो पहले से जानता है जिस इंफॉर्मेशन को, उसको कंबाइन करके यूज करता है दूसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए, जानने के लिए. तो इसे हम कौन सी इंटेलिजेंस में कैटेगराइज करेंगे? So here the answer is crystallized intelligence. So basically Cattell and Horn ने दो टाइप की इंटेलिजेंस दी थी. One is fluid intelligence, another is crystallized intelligence, जिसे हम GCGF मॉडल और GFGC मॉडल भी कहते हैं. Now let us revise both of these intelligence. Fluid intelligence is biological or innate in nature, जो हमें by birth मिला है. Okay, it helps us in solving new problems, even it helps in pattern recognitions, it helps us to solve novel problems, novel tasks, some puzzles and etc. Okay, this type of intelligence is innate in nature and declines with age. You have to remember this point as it is important. एज के साथ जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो हमें बाय बर्थ मिली है, इट में डिक्लाइन. But if we talk about crystallized intelligence, it is gained from our past learning and experience. जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस रह चुके हैं, जो पुरानी लर्निंग रह चुकी है, हम वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उसे यूज करके हम अपनी न्यू इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं. सो वी यूज एंड कंबाइन ओल्ड फैक्ट्स हेयर, फेमिलियर फैक्ट्स हेयर, we use our vocabulary, we use our general knowledge so that we can learn new concepts and we can solve other problems. But this पर्टिकुलर इंटेलिजेंस इज एक्सपीरियंस बेस्ड. तो हम जितना अनुभव लेते हैं, जितना सीखते हैं, उससे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बनती है एंड इट फर्दर इंक्रीजेज विद एज. एज के साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस, अनुभव और बढ़ता चला जाता है, हमारी लर्निंग्स एड ऑन होती हैं एंड दैट इज हाउ वी लर्न हेयर. Okay, so these are the two basic intelligence given by Cattell and Horn. Okay, so later on even Carroll proposed three stratum model of intelligence, which include journal level intelligence, broad level and the narrow level. So journal is the like the overall intelligence, broader are the broader groups of intelligence in particular, and narrow is the very specific one, like a particular task, like आपको drawing painting अगर पसंद है और broad उसका art हो गया, और art से भी ऊपर if you have a general kind of intelligence, तो उन्होंने इस तरीके से मॉडल दिया था. ओके, एंड लेटर ऑन CHC मॉडल जो था वो कैटेल, हॉर्न और कैरल के मॉडल को कंबाइन करके बनाया गया था, जिनके बेसिस पे फर्दर IQ टेस्ट डिजाइन किए गए. Okay, so this is important concept here, fluid intelligence and crystallized intelligence. Next question says, which one of the following are characteristics of Cattell's culture fair intelligence test? 1 speed, 2 power, 3 non-verbal and 4 performance. Now in this question, first you need to understand they are talking about Cattell's culture fair intelligence test. Culture fair का मतलब क्या है यहाँ पे? That test which is not biased towards any race or ethnics or culture. ठीक है, किसी भी कैटेगरी को कोई बायस जो शो नहीं करता है, उसे कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है. इवन
द पॉपुलेशन विच इज लिटरेट एंड नॉन लिटरेट, ठीक है, अगर आपको पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता है वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो इसके जो टेस्ट हैं वो उस अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं जहाँ पे इस तरीके के बायस जनरेट ना हो। Okay, so what kind of things they incorporate in the test? So they have speed test, power test, non-verbal और performance test. So इनमें से क्या categories हैं? It is 1, 2 and 3 and not the performance one. तो यहाँ पर स्पीड देखी जा सकती है, आप किसी टेस्ट को कितनी तेजी से कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं। एंड नॉन वर्बल कमांड्स आर देयर, नॉन वर्बल आंसर्स आर देयर, जहाँ पे आपको लिटरेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप शेप्स के साथ डील कर रहे हो, आप ब्लॉक्स के साथ डील कर रहे हो, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्बल कमांड। तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा किसी को वर्बल कमांड आपकी समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो स्पीड, पावर और नॉन वर्बल एट्रीब्यूट्स इसमें रहते हैं। ओके, सो अगेन स्पीड, it contain time limit items. Power, difficulty increases progressively, ठीक है, gradually simple से difficult items की तरफ हम बढ़ते हैं और उसमें efficiency देखी जाती है। नॉन वर्बल में हम फिगर, मैट्रिक्स, पैटर्न्स यूज करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस पे यहाँ पे मेजर फोकस नहीं रहता है। ओके, सो इट इज टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड एनी काइंड ऑफ स्कूलिंग है। Then question 3 says, which of the following is not a component of creativity according to Torrance? You have to tell which is not a component of creativity. TT के हिसाब से, Torrance test के हिसाब से, 1 is flexibility, 2 is elaboration, 3 is abstractness of title and 4th is verification. This is very direct question. Here the answer is verification. You need to revise here TTCT, Torrance Test of Creative Thinking. It has the major components of creativity, which are number 1, fluency, which means how many number of ideas you can generate from a single thing. Okay, that is fluency. Like for example, if I ask you how this pen can be used in number of other ways, so that is your fluency, if you can generate number of ideas out of it. Then you have flexibility, which is variety of ideas, that is shifting your perspective. So fluency mein we are talking about the number, here we are talking about not just the number but the variety you can generate, ठीक है, कितनी टाइप्स की चीजें आप, कितना वास्ट आप सोच सकते हैं क्रिएटिविटी में। देन यू हैव ओरिजिनलिटी, यानी कि नॉवेल्टी ऑफ आइडियाज, यूनिकनेस, इज इट अ सिमिलर थिंग जो मैं और आप, कोई और के दोस्त भी कोई सोच सकता है, या कुछ रेयर नोवल आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है। एंड 4th वन इज एलैबोरेशन, दैट मीन्स डिटेल्स एडेड टू योर क्रिएटिविटी। Next is abstractness of titles. So when you can conceptualize even beyond the obvious things. Okay, conceptual level pe things can be more creative also. Ideas can be more creative at the abstract level. And then next is resistance to premature closure. So premature closure, resistance to this, that means you are not in hurry to finish things up quickly. You are in state of exploring more and more rather than finishing things quickly. Okay, so that is also that trait of creative thinking here. So these are the core components of Torrance test of creative thinking. Which of the following definitions is not correct according to Gestalt therapy? So item 1 says introjection refers to the internalized rules governing our thoughts, feelings and behavior which we absorb from parental and other influences from childhood onwards. तो वो कह रहे हैं इंट्रोजेक्शन, उन्होंने एक टर्म दिया, इट इज रेफरिंग टू व्हाट, जो रूल्स हमने इंटरनलाइज अपने अंदर ले लिए हैं गवर्निंग आवर थॉट्स, और वो हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, और वो आया कहाँ से है, हमारे पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस से, हमारे बचपन के इन्फ्लुएंसेस से कुछ रूल्स हमने ले लिए हैं, इसे इंट्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जेस्टॉल्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा जेस्टॉल्ट का, उससे जेस्टॉल्ट थेरेपी जनरेट होती है जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं, एज अ होल चीजों को देखते हैं।
तो यहाँ पर पूछा गया है आपको इनमें से बताना है कौन उस थेरेपी में फिट नहीं होती है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन, देन वी हैव रेट्रोफ्लेक्शन which refers to the process whereby we do to ourselves what would like to do to someone else. अगर जो चीज हम किसी और के साथ करना चाहते हैं वो ही जब हम अपने साथ करते हैं, सपोज यू आर एंग्री विथ समवन एल्स, आप उसको मार नहीं सकते तो आप खुद को हर्ट करते हो, खुद को मारते हो, दैट इज रेट्रोफ्लेक्शन. Third is confluence, which refers to the style of relating to other people, which is based on an absence of conflict and a conviction that everyone should be in agreement. So confluence में what you are doing, you are just agreeing to what other people say in order to avoid any conflict. कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, इसलिए जो भी दूसरा व्यक्ति कह रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है. दैट इज कॉन्फ्लुएंस. Fourth one, they are saying deflection, which refers to process of attributing aspects of ourselves to other people. जो हम में कमी है, जो हमें अपने अंदर दिखाई दे रहा है, हम वो ही दूसरों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हाँ, ओके. तो आपको इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. इस चारों डेफिनेशन में से एक इनकरेक्ट है, एंड विच इज डिफ्लेक्शन, बिकॉज डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो ये दी है ये प्रोजेक्शन है बेसिकली. प्रोजेक्शन में होता है कि जो हम एक्चुअली में फील कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर फीलिंग विद इन, वी आर प्रोजेक्टिंग दैट टू समवन एल्स. सपोज यू आर फीलिंग जेलस ऑफ समवन, तो आप दूसरों पे आरोप लगाओगे दैट यू आर फीलिंग जेलस ऑफ मी. दैट इज प्रोजेक्शन. ओके, सो deflection is incorrect here. Let us see how. So there is this concept called Gestalt therapy, contact boundary disturbances. तो here what happens, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और जो जेस्टॉल्ट का कॉन्सेप्ट है वो कंबाइन हो जाता है. सो जेस्टॉल्ट थेरेपी फोकस करती है अवेयरनेस पे, हेयर एंड नाउ, यानी कि प्रेजेंट को हम एक्सपीरियंस करें, एंड कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट है उस पर फोकस करती है. लेकिन जो हमारा अवेयरनेस, एनवायरमेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट वाली बात हो रही है, जब इसमें डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ठीक है, सो ये एरिया यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है. ओके, और ये डिस्टर्बेंस कब आती है, जब हम कुछ ना कुछ चीज अवॉइड कर रहे होते हैं अपने अंदर. वी आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन जहां पे एनवायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, एंड वी आर एस्केपिंग समथिंग. हम कुछ ना कुछ अवॉइड कर रहे हैं, और जब भी हम कुछ अवॉइड करते हैं, कुछ रियलिटी एस्केप करते हैं, तब कुछ डिस्टर्बेंस कॉज होती है. उसको हम बोलते हैं जेस्टॉल्ट थेरेपी कॉन्टैक्ट बाउंड्री डिस्टर्बेंसेस. अब ये डिस्टर्बेंसेस में क्या क्या होता है, फर्स्ट इज इंट्रोजेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा था. सो हेयर वी टेक इन बिलीफ विदाउट इवेल्युएशन. ठीक है, इवेल्युएट करे बिना ही हम कुछ चीजें अपने अंदर कोई बिलीफ सिस्टम ले लेते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे चाइल्डहुड से आता है. ओके, सो एग्जाम्पल के लिए, आई मस्ट ऑलवेज ओबे सर्टेन रूल्स. ठीक है, ये काम मुझे करना ही करना है, या हमेशा मुझे बात माननी ही माननी है, इस तरीके की चीजें आती हैं. दैट इज इंट्रोजेक्शन. देन वी हैव प्रोजेक्शन, जहां हम अपनी ही फीलिंग्स को दूसरों पे एट्रीब्यूट करते हैं. ओके, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, खुद जेलस हो तो दूसरों को बोलो आप मुझसे जेलस हो. इफ यू आर फीलिंग सेल्फिश तो कॉलिंग अदर सेल्फिश, दैट इज प्रोजेक्शन. देन वी हैव रेट्रोफ्लेक्शन, डूइंग टू सेल्फ व्हाट वांटेड टू डू अदर्स. ओके, जो हम दूसरों के साथ करना चाहते हैं, गुस्सा आ रहा है, दूसरों को मारना चाहते हैं, बट हम खुद को मार रहे हैं, दैट इज रेट्रोफ्लेक्शन. Then we have deflection. Deflection की actual definition है avoiding any real contact. So here we avoid certain topics. किसी से बात कर रहे हो अगर आप, and you are not comfortable in that particular topic, or you are not comfortable with that person also, तो आप क्या करते हो, बात करना ही अवॉइड करोगे, या अगर कोई बात हो रही है तो आप टॉपिक चेंज कर दोगे, है ना, या आप कोई जोक क्रैक कर दोगे टू sway away from that particular emotional event जो उस व्यक्ति के साथ जनरेट हो रहा है. That is deflection. Then we have confluence, where we lost boundaries and we over agree. मतलब किसी वजह को जाने बिना ही, just because कोई dispute ना हो जाए, हम दूसरे की सब बात मान लेते हैं, saying yes to avoid any kind of conflict. That is confluence. Okay.
Now next question says, which of the following examines information processing approach to intelligence? 1. Overall success in living. 2. Structure of intelligence. 3. Function of intelligence. And 4. Processes underlying intelligent behavior. तो यहाँ पर बात की जा रही है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस. आपको क्वेश्चन के नाम से ही पता चलेगा जिस टेक्निक की यहाँ बात हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना इंटेलिजेंस के लिए. तो यहां पर बात हो रही है डायरेक्टली प्रोसेसेस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर. तो ये किसको एग्जामिन कर रहा है? प्रोसेसेस अंडरलाइंग, जो भी इंटेलिजेंस है उसके अंडर कुछ प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में हमारे, उस प्रोसेस को फोकस करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. ठीक है. व्हाट हैपेंस हियर? इट फोकसेस ऑन हाउ माइंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रेदर देन हाउ मच इंटेलिजेंट अ पर्सन हैज. ठीक है, हमारा माइंड किसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है. तो वो इंटेलिजेंस को एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह देखते हैं जो एक सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स जो इसमें हम पढ़ते हैं? दैट इज एनकोडिंग. व्हेन वी फर्स्ट अंडरस्टैंड, टेक इन एंड अंडरस्टैंड एनी इंफॉर्मेशन. देन स्टोरेज, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ के अपनी मेमोरी में रखते हैं. देन रिट्रीवल, जरूरत पड़ने पे, जैसे एग्जाम्स में आप उस इंफॉर्मेशन को वापस निकालते हो, ऑपरेट करते हो, जनरेट करते हो. देन मेंटल ऑपरेशंस, आप उसके ऊपर यू थिंक अबाउट इट और उसको यूज करके यू ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ओके. एंड देन रिस्पॉन्स जनरेशन, प्रोड्यूसिंग एन आंसर आफ्टर प्रोसेसिंग. तो आप पूरा प्रोसेस करने के बाद, जो सवाल आपसे पूछा गया है, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, पहले रिट्रीव किया आपने अपने मेमोरी से, रिट्रीव करने के बाद उस पर मेंटली ऑपरेट किया एंड देन उसको आंसर को जनरेट किया. So this is the whole procedure of this information processing approach. Next question says, the four-stage theory of creativity was proposed by Joseph Wallace. You have to arrange the stages in sequence. This is very important question and most repetitive question in your exam. So you have to arrange them in a sequence. जोसेफ वलास ने 4 स्टेज दिए क्रिएटिविटी की. आपको इन चारों स्टेजेस को सीक्वेंस में अरेंज करना है. व्हाट आर द 4 स्टेजेस? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन. सो हेयर सीक्वेंस वुड बी A, B, C and D. This is the original sequence. What happens exactly? First we prepare, where we collect information, okay, for our thing what we are about to do. हम कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. देन वी इंक्यूबेट. इंक्यूबेशन में हम अनकॉन्शियसली प्रोसेस करते हैं. वी टेक अ ब्रेक आफ्टर लाइक गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली इट वर्क्स टू जनरेट सम इंफॉर्मेशन. And finally, then we have illumination. Then we have that insight moment, aha moment, when we realize something कि हाँ मुझे समझ आ गया ये काम कैसे करना है. Right? We get that solution suddenly. That is illumination. And finally, verification. Now, whatever you have, whatever thoughts you have arrived, या जो भी solution आपने figure out किया है, now you try to verify that by testing that, by evaluating that, by refining the idea you are working upon. तो उस तरीके से आप further उस पे काम करते हो. Now, the next question says, which of the following statements are true? All intelligent persons are creative. Creativity is also known as divergent thinking. Creativity is genetically determined. Research is not conclusive about the relationship between intelligence and creativity. You have to tell इसमें से कौन से statements true हैं. Okay. So we'll examine each and every item here. All intelligent persons are creative. This is not true. Every intelligent person, you cannot say that all of them are creative also. Okay, we'll understand this theory also, how intelligence and creativity are related to each other. Creativity is also known as divergent thinking, which is true. Yes, when we are able to think in divergent ways, multiple ways, in different directions, creativity is said to be generated. Creativity is genetically determined. No, not always. Environment का influence भी रहता है.
Research is not conclusive about the relationship between intelligence and creativity. Yes, तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के रिलेशनशिप को लेके देर इज सर्टन वर्क, देर इज सर्टन थियरी ऑल्सो, बट इट इज नॉट conclusive in nature. So here the answer is B and D. Okay, and so we have discussed all these options. Now the next question says the product approach to creativity primarily focus on what type of people are creative, how does environment shape creativity, how do people arrive at creative ideas, what is considered to be creative. बहुत सिंपल है क्वेश्चन. प्रोडक्ट अप्रोच टू क्रिएटिविटी पूछा गया है. जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आपकी क्रिएटिविटी का, वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटिव. हम किसको क्रिएटिव बोलेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट अप्रोच है. ओके, नाउ what are the related approaches? So there is this 4 P's of creativity given by Rhodes in 1961. First P is person. It focuses on traits, personality and ability of that creative person. It focuses on who is creative. आप किस व्यक्ति को creative कहेंगे? Example or the keywords are motivation, like the one who is motivated, curious in nature, has originality, has intelligence. Okay, these are the person related areas. Then another P talks about the process of creativity. That means the stages and mechanism of creative thinking. So how does creativity actually occur or happen? So the stages given by Wallace, जो अभी हमने पढ़ी थी, preparation, incubation, illumination, verification, it talks about the process of creativity. Divergent thinking talks about the process of creativity. Then we have product, that the outcome of your creativity, the result of your creativity. So what counts as creative or what is considered to be creative is the product, which include your novel ideas, inventions, artwork, the original work, and the usefulness of that work. Finally, you have P for press. That press means environment. So environmental social influences on your creativity. So where or why does creativity occur, or you can say how does the environment shape creativity. तो all these deal with environment. ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है? आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, एजुकेशनल क्लाइमेट कैसा मिला है आपको, तो ये सब चीजें एनवायरमेंट में आ जाती है. ओके, now the next question says, as per threshold hypothesis there exists threshold hypothesis. This hypothesis talks about relationship between intelligence and creativity. So item 1 says modest positive relationship between intelligence and creativity when IQ is above the threshold. Second statement says modest positive relationship between intelligence and creativity when IQ is below the threshold. Third, weak positive relationship between intelligence and creativity when IQ is below the threshold, and weak positive relationship between intelligence and creativity when IQ is above the threshold. तो आपको पहले इसके लिए threshold hypothesis को समझना होगा. Basically what happens जब भी हम IQ की बात करते हैं, तो threshold hypothesis says if a threshold is 120 IQ, ठीक है, तो at this till this threshold, ठीक है, when IQ is increasing, creativity is also increasing, but till 120 only. Further if IQ increases, there is a weak relationship or even negligible relationship between intelligence and creativity. तो ये relationship इनका सिर्फ threshold, below threshold तक ही रहता है, positive relationship. ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की, व्हेन IQ इज अबव द थ्रेशोल्ड, सो देयर इज वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. सो दिस वुड बी द आंसर है. ओके, सो अबव 120 देयर इज वीक और नो रिलेशनशिप. Below 120
there is moderate to strong positive relationship. Next question says, who among the following is credited with proposing the investment theory of creativity? So, who gave this investment theory of creativity? 1. Getzels and Jackson, Kaufman, Wallace and Kogan, and Sternberg. Here the answer is Sternberg. Sternberg gave this investment theory of creativity. Basically, this theory was given by Sternberg and Lubatt. According to this theory, creative individuals buy low and sell high in the world of ideas and meaning. क्या मतलब है इस बात का? Buy low and sell high. For example, कोई अनपॉपुलर आइडिया है, ठीक है, कोई कोई किसी आइडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, किसी आइडिया को वो पकड़ के चलते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से उस आइडिया को वो दे डू सम ग्रेट वर्क टू इट. अभी बेसिक सा आइडिया है, किसी ने उस पर काम नहीं किया ज़्यादा, उन्होंने उस आइडिया को पकड़ा, अपनी क्रिएटिविटी उस आइडिया में ऐड करी, नाउ दिल सेल हाई. अब वो उसको उसके लिए रिकॉग्निशन लेंगे, अब वो उसको महंगे मत कहते हैं ना, कम सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा. इस क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी ये कहती है. तो किसी अनपॉपुलर नॉवल आइडिया को आपने पकड़ा जिसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस आइडिया में आपने अपनी वैल्यू ऐड करी और उसको बड़ा बना दिया उस आइडिया को, तो ताकि लोग आपको पहचान रहे हैं, उस आइडिया को लोग समझ रहे हैं, खरीद रहे हैं, एक्सेप्टेंस हो रही है. तो ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी कहती है. ओके, so there are 6 resources needed for creativity according to this theory. There are 6 resources needed. One is intellectual ability, so that we can see problem in new ways. Knowledge, foundation for creativity. Then styles of thinking, so that we can like think creatively. Our personality, because this needs some confidence and risk taking ability. Then motivation, more of intrinsic kind of motivation जो अंदर से आए. And environment, so you also need some supportive environment to exhibit this. Okay, now next question says, in 1986 symposium on intelligence identify main loci of intelligence. Intelligence within the individual, intelligence within the environment, intelligence within the interaction between individual and environment, intelligence to be measured by psychometric measures. तो जो एक सिंपोजियम हुआ था इंटेलिजेंस में 1986 में, उसने इंटेलिजेंस पे मेन फोकस क्या क्या रखा था? एक्चुअली उन्होंने ये तीनों ही बातों को फोकस में रखा था. एक, व्यक्ति के अंदर की इंटेलिजेंस, ओके, विद इन द इंडिविजुअल, विद इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस, एंड इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, यानी कि जो मेरे इनेट चीजें हैं और जो एनवायरमेंट का जो रोल है, नेचर और नर्चर, उन दोनों का ही इफेक्ट इंटेलिजेंस पे क्या पड़ रहा है, ये भी रखा था. इंटेलिजेंस टू बी मेजर्ड बाय साइकोमेट्रिक मेजर्स, ये एक अलग टॉपिक है. इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस सिंपोजियम. सो हेयर द आंसर इज दिस, A, B and C. Okay. Then Torrance used the term creatively handicapped for whom? Student very high in creativity but low in academic achievement, student high intelligence but low in creativity, student average in both, student with low level of both intelligence and creativity. तो creatively handicapped word Torrance ने उन बच्चों के लिए यूज किया था जिनका creativity level बहुत हाई है लेकिन academic achievement बहुत लो है. बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं लेकिन स्कूल में दे कांट स्कोर वेल. ओके, दे परफॉर्म वेरी बैड, वेरी पुअर और अंडर परफॉर्म इन एकेडमिक एनवायरनमेंट. तो ऐसे बच्चों को उन्होंने क्रिएटिवली हैंडीकैप का टैग दिया था. सो दीज स्टूडेंट बेसिकली स्ट्रगल इन प्रॉपर रिजिड स्कूल स्ट्रक्चर, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, एंड दे इवन लैक सपोर्ट फॉर देयर डाइवर्जेंट थिंकिंग. Next question is about the matchup. List 1 talks about big C creativity, little c creativity, mini c creativity and pro C creativity. These are 4 kinds of creativity and the 4 descriptions: creativity of eminence, creativity of everyday life, subjective and personal form of creativity, professional creativity. So you have to match up the following simply, and here all are already in sync.
Let us revise all of them once. Starting with mini C creativity. So mini C creativity is about personal and internal interpretation of new experiences. That is subjective creativity. यानी कि हम अपने ही पर्सपेक्टिव से, अपने इंटरप्रिटेशन से, पर्सनल इंटरप्रिटेशन से हम अपनी क्रिएटिविटी डिस्कवर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डिस्कवरिंग अ न्यू वे टू सॉल्व पजल और पर्सनल ड्राइंग इंटरप्रिटेशन. तो जब कोई बच्चा अपनी ही इंटरप्रिटेशन बना रहा है ड्राइंग से, जैसे दे ड्रॉ अ क्लाउड एंड देन कॉल इट समथिंग एल्स, और वो उसको क्लाउड को आइसक्रीम बुला रहे हैं. दे और दे से कि वी हैव अ वॉकिंग हाउस, चलने वाला घर है हमारा. लाइक एनीथिंग दे विच दे आर एडिंग देयर सब्जेक्टिव क्रिएटिविटी, उसको हम मिनी सी क्रिएटिविटी कहते हैं. देन वी हैव लिटिल सी क्रिएटिविटी, where everyday creativity is used in routine life, which is recognized by other but not at professional level. दूसरे लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारी एवरीडे क्रिएटिविटी है, जैसे कि हम अपने रूम को कैसे डेकोर कर रहे हैं या स्कूल के लिए कोई पोएम लिख रहे हैं. तो दिस इज लिटिल सी क्रिएटिविटी, रोजमर्रा के रूटीन में जो हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है. देन वी हैव प्रो सी क्रिएटिविटी, विच इज प्रो इज प्रोफेशनल लेवल क्रिएटिविटी, जहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए. ओके, बट फिर भी हायर लेवल पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं. अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन परफॉर्मिंग प्रोफेशनली, अ रिसर्चर पब्लिशिंग पेपर. सो इन सब में क्रिएटिविटी चाहिए. दिस इज प्रो सी क्रिएटिविटी. देन वी फाइनली हैव बिग सी क्रिएटिविटी. Big C is the eminent, historically significant creativity that changes a field or society. जो कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव काम करते हैं, जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है, उसको हम बिग सी क्रिएटिविटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, शेक्सपियर का लिटरेचर वर्क, सीवी रमन का रमन इफेक्ट. तो ये सब बिग सी क्रिएटिविटी में आता है. ओके, सो वी हैव दिस मिनी सी जो पर्सनल है, लिटिल सी जो एवरीडे वाली क्रिएटिविटी है, देन वी हैव प्रो सी जो प्रोफेशनल लेवल पे है, एंड देन वी हैव बिग सी जो कि हायर लेवल पे है, जो कि सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रही है. The next question says the chronological age that most typically correspond to a given level of performance is called. तो क्या बात कर रहे हैं? द क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल मतलब जो एज है, बॉडी की जो एज है हमारी, जो बढ़ती जा रही है हर साल, that most typically correspond to a given level of performance. लेकिन जब हम उसको परफॉर्मेंस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस माने जैसे कहते हैं ना, 1 साल का बच्चा चलने लग जाता है या 2 साल का बच्चा बोलने लग जाता है, तो वो परफॉर्मेंस लेवल के साथ हम कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. और जब हम परफॉर्मेंस लेवल की बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मैच्योरेशन, मेंटल एज, नन. सो हेयर द आंसर वुड बी मेंटल एज. जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसको मेंटल एज बुलाते हैं. ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट से बिनेट ये मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था. इट इज द एज लेवल एट विच एन इंडिविजुअल टिपिकली परफॉर्म्स ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्टिकुलर एज पे आपकी एक पर्टिकुलर मेंटल एज होती है, या जो आपसे एक्सपेक्टेड मेंटल एज होती है कि आप 5th क्लास में इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टेस्ट पे, या आप टेबल्स अच्छे से आपको आता होगा, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आपको आता होगा, तो वो आपकी मेंटल एज है. ओके, सो इट इज रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल क्रोनोलॉजिकल एज. तो मेंटल एज का एक कॉन्सेप्ट दिया गया. ओके, सो लेटर दिस कॉन्सेप्ट वो यूज बाय स्टर्न टू कैलकुलेट IQ. इसी से IQ निकाला जाने लगा. IQ का फॉर्मूला था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. तो क्रोनोलॉजिकल एज तो एक्चुअल बॉडी की एज है, मेंटल एज जो आपकी परफॉर्मेंस वाली एज है, जिस लेवल पे आप परफॉर्म कर रहे हो, इनटू 100. एंड दिस वाज द फॉर्मूला गिवन टू calculate your IQ. So the chronological age that corresponds to given performance level is the mental age here. Now the next question says, which is not the obstacle to problem solving? A. confirmation bias, B. fixation, C. mental set, D. heuristic. तो आपको यहाँ पे
ऑब्स्टेकल्स की बात की जा रही है। किसके ऑब्स्टेकल्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो रुकावटें आती हैं उनके बारे में, और आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं है। तो वेरी क्लियरली ह्यूरिस्टिक इज अ शॉर्टकट, प्रॉब्लम सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है, वो ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑल अदर थ्री आर ऑब्स्टेकल्स, सो ह्यूरिस्टिक वुड बी द आंसर हेयर। नाउ लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट वंस। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो सकते हैं? वन इज confirmation bias. In confirmation bias, we try to search information that confirm our existing belief. हम पहले से ही जो सोचते हैं, विचारते हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, हम उसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं, और जो उसका कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस हमें मिलता है उसके अगेंस्ट, हमारे बायस के अगेंस्ट जो होता है, विचारधारा के अगेंस्ट जो होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं टोटली। ये ऑब्स्टेकल बनता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि लेफ्ट हैंडेड लोग जो होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्या करेगा? दे विल नोटिस ओनली लेफ्ट हैंडेड पीपल, और जो राइट हैंडेड क्रिएटिव लोग हैं उनको वो इग्नोर करेगा, अपनी ही बायस को कंफर्म करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट ऑब्स्टेकल वी हैव इज फिक्सेशन। When there is inability to see a problem from a new perspective. तो जब हमारे दिमाग में कोई पुराना मेथड फिक्स है, हम उसी फिक्सेशन के साथ नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे फिक्सेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, डोर पे लिखा है आपको पुश करना है, बट फिर भी हम पुल कर रहे हैं, या पुल लिखा है फिर भी हम पुश कर रहे हैं। देन अनदर प्रॉब्लम कम्स मेंटल सेट. Again, we use an old method to solve new problem, even when it doesn't work. पुराना मेंटल सेट है, पहले से ही वी नो कि ये एक पुराना मेथड है, और हमें पता है वो मेथड काम नहीं कर रहा है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू अप्लाई दैट. सो वी ट्राई टू सॉल्व फॉर एग्जाम्पल एवरी मैथ प्रॉब्लम यूजिंग द सेम फॉर्मूला इवन व्हेन अ सिंपल वन एग्जिस्ट. वी हैव अदर सिंपल फॉर्मूलाज, उसको इग्नोर करके हम पुराने ही मेथड को यूज कर रहे हैं. ओके, देन वी हैव फंक्शनल फिक्सेडनेस. फिक्सेशन का ही सब टाइप है ये. हेयर वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन देयर यूजुअल फंक्शन, नॉट ऑल्टरनेट यूजेस. ठीक है, कुछ नया सोच ही नहीं पाते. आपको पता है ये पेपर है, पेपर से हम बस पेपर के ऊपर लिख सकते हैं, इतना ही पता है. उस पेपर को आप रैप करने के लिए भी यूज, गिफ्ट रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हो. हम फिक्सेशन हो गया, फंक्शन का फिक्सेशन हो चुका है कि नहीं, पेपर तो सिर्फ लिखने के लिए ही है, तो हम नया नहीं सोच पाते हैं. देन वी हैव बिलीफ परसेवरेंस. अगेन, जहां पर वी होल्ड ऑन टू वंस ओन बिलीफ इवन आफ्टर एविडेंस डिसअप्रूव देम. ठीक है, अगर हम अपने बिलीफ को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम किसी और एविडेंस को नहीं मानते हैं. देन वी ऑल्सो हैव फ्रेमिंग अफेक्ट, जहां पर जो वर्ड्स हैं और जब जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जा रही है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देता है. ओके, तो वर्डिंग का भी हम पे असर पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट पे अगर 90% फैट फ्री लिखा है रेदर देन 10% फैट, जबकि दोनों की बातें सेम ही हैं, बट स्टिल हमारा डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमें 90% फैट फ्री की तरफ ज्यादा जाना है. ओके, तो दिस इज फ्रेमिंग अफेक्ट. Next question says, it is an assertion reason question. Assertion says algorithm is a logical rule that guarantees solving particular problem. One can find the solution even to complex problem by following step-by-step procedure. True. तो algorithm प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, सो यस, यहाँ पे assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर. सो दीज आर द other techniques of problem solving. Let us revise them once. So algorithm is step by step logical procedure towards a solution. It key feature is it is accurate and it guarantees a solution. लॉन्ग मेथड है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सॉल्व करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे करते हैं एंड वी श्योरली गेट अ आंसर. देन वी हैव ह्यूरिस्टिक टेक्निक. इट इज़ अ रूल ऑफ थंब, दैट इज मेंटल शॉर्टकट. ये फास्ट होता है बट हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है.
For example, for example, when we see trial rooms are full, store is crowded to decide time to shop. ओके, तो हम शॉपिंग पे गए हैं और हमने देखा ट्रायल रूम तो फुल है, तो इसका मतलब स्टोर इज वेरी क्राउडेड। तो हमने ट्रायल रूम के फुल होने से ये डिसाइड कर लिया कि स्टोर पे अभी क्राउड ज़्यादा है तो हम बाद में शॉपिंग करेंगे। ट्रायल एंड एरर टेक्निक, यहाँ पर वी ट्राई टू अटेम्प्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस कि उसमें से कोई तो काम करेगा। एट टाइम्स इट वर्क्स, तो बहुत सारे रैंडम एफर्ट्स हम देते हैं तो उसमें से कोई एक काम कर जाता है और हमें रियलाइज होता है कि हम इस तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव इनसाइट टेक्निक वेयर वी सडनली रियलाइज समथिंग, कुछ इंस्टेंट अंदर से क्लैरिटी आती है कभी कभी एंड वी गेट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन वी हैव मीन्स एंड एनालिसिस, here we try to break our problem into smaller sub goals। कोई बड़ा काम है आपके पास, आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रिप प्लान करना है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करोगे कि पहले आपको टिकट्स की बुकिंग करनी है, कैब की बुकिंग करनी है, स्टे की बुकिंग करनी है, इस तरीके से। सो आप उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप फिर उसको अकम्प्लिश करते हो। वर्किंग बैकवर्ड्स, सो यहाँ वर्किंग बैकवर्ड उल्टा वापस, तो जो गोल है आप वहां से स्टार्ट करोगे और बिगनिंग की तरफ काम करोगे। ओके, ये तब फायदेमंद होता है जब आपको फाइनल गोल अच्छे से आपका पता होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेज सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम उल्टा चलने की कोशिश करते हैं और हम इनिशियल उस पर पहुंच जाते हैं। ओके, then we have analogical thinking, here we use past solutions to solve new similar problem। कोई प्रॉब्लम पहले हमने सॉल्व करी हो, वही तरीका अब हम क्या करते हैं, नए प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इट मे हेल्प इन सॉल्विंग अ न्यू प्रॉब्लम। तो जो हमारा पुराना तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो भी कभी कभी अप्लाई करके हम नई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो वी ट्रांसफर आर लर्निंग टू न्यू थिंग्स। देन वी हैव ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। ओके, बहुत क्वांटिटीज ऑफ आइडियाज जनरेट होते हैं, जनरली ये ग्रुप में किया जाता है, टीम वर्क में किया जाता है, एंड बहुत सारे आइडियाज जनरेट करते हैं सो दैट वी कैन वर्क अपॉन फ्यू, कुछ कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है उसके अंदर। देन वी हैव लेटरल थिंकिंग ऑल्सो, दिस थिंकिंग इज यूनिक एंड इनडायरेक्ट, हेयर वी थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थोड़ा हटके सोचते हैं हम कभी, सो क्रिएटिवली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पेपर क्लिप्स को यूज कर लिया अपनी बैग की जिप के लिए, इस तरीके से। सो वी थिंक जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स हेयर, लेटरल थिंकिंग। सो दिस इज अनदर टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Gardner's theory of intelligence posits that a person who is introspective, self-reflective, understands the strength and weakness, tend to have higher level of what? गार्डनर ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, उसके अंदर इनिशियली 7 इंटेलिजेंस के टाइप दिए थे, देन वो 8 हो गए थे, देन फर्दर वो 9 हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उस पर्सन की बात की जा रही है हु इज इंट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, अपने अंदर सोच पा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम उनके बारे में सोच पा रहा है। तो कौन सा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उस व्यक्ति का ज्यादा होगा? ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल, 2 naturalistic intelligence, 3 interpersonal and 4th is linguistic। Here the answer is intrapersonal, माने इंट्रा मतलब आपके अंदर, पर्सनल इज खुद, इंट्रापर्सनल खुद के भीतर की इंटेलिजेंस। सो हेयर इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नाउ लेट अस रिवाइज ऑल दीज इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस is about reading, writing, speaking, language used creatively. Examples: writer, poetess, lawyer, speaker, journalist. Then logical mathematical intelligence, इसमें हमारी abilities क्या होती हैं? रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर, साइंटिफिक थिंकिंग। एग्जाम्पल्स कौन से लोगों में होता है? ये ज्यादातर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, स्टैटिशियन। Then we have spatial and visual intelligence. Here we have mental, imaginary, visualizing object in space, space में चीजों को जानना समझना।
मेंटली पिक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर पाना, जनरली आर्टिस्ट लोगों का, आर्किटेक्ट का, डिजाइनर्स का ये अच्छा होता है। देन वी हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमें रिदम की समझ है, मेलोडी की समझ है, म्यूजिक की कहीं ना कहीं समझ है, म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर, इन सब में ये अच्छा होता है। देन वी हैव बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमारे फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स को हम यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को इफेक्टिवली यूज करते हैं, जैसे कि डांसर्स का, एथलीट्स का, सर्जन्स का, क्राफ्टमैन का ये चीज अच्छा होता है। देन वी हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, वी कैन कम्युनिकेट वेल, वी कैन बी एम्पैथेटिक अबाउट अदर्स, हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है, एम्पथाइज कर पाते हैं, दिस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। टीचर्स का, काउंसलर्स का, लीडर्स का, सोशल वर्कर्स का ये अच्छा होता है। देन वी हैव इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जहाँ पे हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, इमोशनल इंसाइट्स खुद के बारे में होते हैं। फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर्स का ये अच्छा होता है। देन वी हैव नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग नेचर, एनवायरमेंट, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। देन बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स का ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस अच्छा होता है। लेटर ऑन एक जो इंटेलिजेंस ऐड किया गया था, दैट वाज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इट कंसर्न्स विद लाइफ बिग क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, सेंट्स, फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स में ये होता है। तो दीज आर द 9 इंटेलिजेंस. Now the next question says, arrange in correct sequence the first 5 intelligence given by Gardner. Again, this is based on the similar concept which we have just studied. आपको इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ लोगे, बट यू हैव टू मेमोराइज इट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी है, ओके। सो हेयर द आंसर इज ABCDE, ये सब सीक्वेंस में है, लिंग्विस्टिक, लॉजिको मैथमेटिक, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक, नेचुरल इंटेलिजेंस। सो जो भी आप, जब भी आप इस लिस्ट को रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो प्लीज फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है। कौन सी सीक्वेंस इसकी है, आपको वो सीक्वेंस फॉलो करनी है, याद करना है सीक्वेंस के अंदर, ओके। सो दिस इज linguistic, logical, spatial, then bodily, then musical, then interpersonal, then intrapersonal, and then naturalistic, and last में existential है, okay. Next question says, Jensen put forward the regression argument to account for which of the following? Jensen ने regression argument किस regard में कहा था? To understand intergeneration changes in intelligence, to understand intrageneration changes in intelligence, to understand group differences in intelligence, and to understand role of genetics in intelligence. Jensen ने intelligence का एक concept दिया था जिसमें रिग्रेशन की बात हुई है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, ओके। जब भी जेनसन की बात होती है तो उन्होंने कहा था रेशियल वाइज, कल्चर वाइज, देयर इज ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. So he proposed regression argument to explain IQ differences between racial and ethnic groups. According to him, due to genetic variability, क्योंकि culture और race wise gene difference आता है, because of that, when extremely high IQ parents from a particular group have children, the children's IQ tend to regress towards the group mean, नॉट द पॉपुलेशन मीन. अब एक बार ध्यान से आप इसको समझना, अब हम रिग्रेशन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जो कि जेनसन ने दिया था. तो जेनसन ने बताया था एक चीज तो ये हो गई क्योंकि ग्रुप में जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है. और अब हम बात करें विद इन अ ग्रुप की, तो विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप जो हाई आईक्यू पेरेंट्स हैं उनका जो बच्चा होगा उसका जो आईक्यू होगा वो उस ग्रुप के मीन के आसपास होगा, उस मीन से या तो थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उस रिगार्ड में होगा. इट विल रिग्रेस टूवर्ड्स द ग्रुप मीन की तरफ होगा, ठीक है. ओवरऑल पॉपुलेशन मीन में नहीं होगा, ठीक है. अगर ये एक पॉपुलेशन है इंडिया का, उसके अंदर ये 2 कल्चर है या 2 रेसेस हैं, तो हम इस पर्टिकुलर रेस की बात कर रहे हैं. इस रेस के जो बच्चे होंगे
हाई आईक्यू पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनका जो आईक्यू होगा वो इसी ग्रुप में होगा, मतलब इसी ग्रुप के मीन के आसपास उसकी वैल्यू होगी, ना कि इस पॉपुलेशन के एवरेज आईक्यू के आसपास होगी। ओके, ही यूज दिस टू जस्टिफाई हिज क्लेम दैट ग्रुप डिफरेंसेस इन आईक्यू आर पार्टली हेरिडिटरी। तो जो ग्रुप डिफरेंसेस, इन दोनों ग्रुप की आईक्यू भी एक दूसरे से अलग होगी, इन दोनों का मीन भी अलग होगा, ठीक है। और इन दोनों ग्रुप्स के जो बच्चे होंगे उनके मीन के आसपास उनका आईक्यू रहेगा, या उसके रिग्रेशन में उनका आईक्यू रहेगा, ना कि पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन मीन के उसमें। तो ग्रुप डिफरेंसेस होते हैं आईक्यू में, and it is partly hereditary in nature. Now next question is the reason assertion question. Statement 1 says Spearman proposed the existence of specific factor of intelligence. Reason: it was observed that tetrad differences are always equal to 0. So here we'll understand एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर दिए थे, एक था जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, और एक था एस यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल इज द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस जो बेस है इंटेलिजेंस का, एंड स्पेसिफिक इज द स्पेशल क्वालिटी समवन हैज, किसी पर्टिकुलर काम के अंदर जो इंटेलिजेंस है आपकी, ड्राइंग में, म्यूजिक में, वो आपका स्पेसिफिक फैक्टर है। तो उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। फिर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्राड डिफरेंस। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट टेट्राड डिफरेंसेस आर ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज टेट्राड डिफरेंस हमेशा 0 नहीं हो सकते, but there is a concept of tetrad difference. So here A is true but R is false. But here what important is, हमें ये concept को एक बार समझना है, तो let us revise the concept overall. Spearman gave 2-factor theory of intelligence using the factor analysis approach. Okay. So he gave 2 factors, G factor, general intelligence, S factor, specific abilities. General factor is a common mental energy used in all tasks, responsible for overall performance and correlation across test. जो भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं इंटेलिजेंस के, उनके बीच में जो कोरिलेशन आता है वो जी फैक्टर की वजह से आता है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड गुड इन लैंग्वेज ऑल्सो परफॉर्म वेल इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है तो रीजनिंग मैथमेटिक्स भी अच्छा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ जी फैक्टर। S factor is skills unique to particular domain, task specific and independent of each other, like good in music but average in maths. तो कोई बच्चा हो सकता है म्यूजिक में बहुत अच्छा है पर मैथ्स में एवरेज है। So there is a concept called positive manifold. Spearman observed all cognitive tests are positively correlated. तो जितने भी हमारे कॉग्निटिव टेस्ट हैं, जैसे अभी हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा, लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जनरल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। तो पीपल हु डू वेल इन वन टास्क टेंड टू डू वेल इन अदर टास्क ऑल्सो। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव मैनीफोल्ड। जो बच्चा एक जनरली इंटेलिजेंट होता है, पढ़ाई में अच्छा होता है, वो बाकी सब पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में अच्छा ही परफॉर्म करता है, दैट इज पॉजिटिव मैनीफोल्ड। देन देयर इज थ्योरी रेफर्ड एज टेट्राड थ्योरी, और इसको टेट्राड डिफरेंस इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल प्रूफ था जो स्पीयरमैन ने यूज किया था टू सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ जी फैक्टर। क्या मतलब था इस बात का? उन्होंने देखा कि जो टेट्राड डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक एबिलिटीज जो होती हैं, उसकी वजह से जो अगर डिफरेंस आ रहा है, तो अगर वो 0 आ रहा है, टेट्राड डिफरेंस 0 आ रहा है अगर, इसका मतलब ये है कि देयर इज वन सिंगल जनरल फैक्टर। इफ ऑल tetrad differences are 0, then correlation among all tests can be explained by one common factor. ठीक है, तो अगर tetrad difference 0 आ रहा है, यानी कि S फैक्टर की वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब डिफरेंस तो तब आएगा ना जो यूनिक क्वालिटी होगी हमारी, उसकी वजह से। ओके, और अगर टेट्राड डिफरेंस 0 आ रहा है, दैट मीन जितनी भी हमारे कोरिलेशन शो हो रहे हैं वो सब जी फैक्टर की वजह से हो रहे हैं।
That is one common factor, general intelligence factor. Now, next question is a matchup question. Here you have to match the concept with the psychologist. Direct question है ये. Mental age, IQ, mental test, tetrad equation. You know this. Tetrad mental age बिनेट ने दिया था कॉन्सेप्ट. IQ आपका स्टर्न का कॉन्सेप्ट है. मेंटल टेस्ट कैटेल ने दिए और टेट्राड इक्वेशन स्पीयरमैन ने दिया. Okay, so I guess we have already discussed all these concepts. Next question is again a reason assertion question. Assertion says Thurston labeled his theory of intelligence as theory of primary mental abilities. Reason: Thurston found more than 2 first order factors of intelligence through orthogonal rotation. Okay, तो थर्स्टन का कॉन्सेप्ट था इंटेलिजेंस का और उन्होंने थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी. सही बात है. रीजन: थर्स्टन फाउंड मोर देन 2 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू ऑर्थोगोनल रोटेशन. तो ऑर्थोगोनल रोटेशन के द्वारा उन्होंने 2 से भी ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स मिले थे इंटेलिजेंस के. ओके, ये फैक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ऑर्थोगोनल रोटेशन. अगर आप फैक्टर एनालिसिस को डिटेल में पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा. ऑर्थोगोनल का मतलब होता है, इस रोटेशन का मतलब ये है कि जो भी फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, कोरिलेटेड नहीं है. तो जब उन्होंने देखा फैक्टर एनालिसिस मेथड से तो उनको 2 से भी ज्यादा आएंगे 7 फैक्टर्स मिले इंटेलिजेंस के. सो हेयर both are true and R is the correct explanation of A. Now what are these factors here? तो Thurston rejected Spearman's single G factor and proposed कि intelligence एक multi dimensional construct है. बहुत सारे dimensions हैं जिसमें 7 primary mental abilities है. कौन कौन सी? Verbal comprehension, numerical ability, spatial ability, word fluency, memory, reasoning and perceptual speed. So he used factor analysis with orthogonal rotation and discovered these multiple independent uncorrelated factors. These multiple factors known as primary mental ability, leading to his theory. Okay. Then another question says, which of the following variables can be labeled as organismic variables? 1. Task complexity. 2. Intelligence. 3. Errors made while learning tasks. 4th is हार्ट रेट. ओके, आपको ये बताना है इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स हैं. ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? विच आर इनर वेरिएबल्स लाइक कमिंग फ्रॉम इनसाइड, लाइक हमारा इंटेलिजेंस है या कुछ बायोलॉजिकल नेचर अगर हमारा है, अंदर से आ रहा है, तो वो सब हमारा जो भी अंदर से आ रही है रेदर देन आउटसाइड, वो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है. ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो वेरिएबल है वो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है. तो यहाँ पर 2 इंटेलिजेंस एंड 4 हार्ट रेट ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स हैं. So organismic variables are internal characteristics of an individual, intrinsic and biological attribute that influence behavior, जो कि हम डायरेक्टली मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली मैन्युपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर. इंटेलिजेंस, हार्ट रेट, हमारी पर्सनैलिटी, एज, जेंडर, इमोशंस, ये सब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी या एरर्स का होना, ये सब एक्सट्रिंसिक है. Next question says, awareness of one's own thought processes enabling effective learning through correction is called algorithm, analogy, metacognition and constructive process. Again, awareness of one's own thought process. अपने ही विचारों के बारे में अवेयर होना, विचार करना, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इससे लर्निंग और इफेक्टिव होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन. ओके, algorithm we already know. Analogies में we just solve problem by comparing the relationship. ठीक है, and constructive process में we build new knowledge based on our prior understanding. Metacognition is awareness and understanding about one's own thinking process. Here we gain ability to monitor, regulate and evaluate learning strategies. We think about our own thinking.
इट हेल्प्स इन करेक्टिंग आवर ओन मिस्टेक्स एंड एरर्स, और इससे हमारी लर्निंग और एफिशिएंटली होती है. Example, when a student realizes that a study technique isn't working and switching to a better strategy. तो जब कोई स्टूडेंट इस तरीके से सोचता है तो वहां पे वो मेटाकॉग्निशन अप्लाई कर रहा है. Next question says the linguistic relativity hypothesis states that language depends on thought process, thinking is shaped by language, language and thought follow independent pathways of development, language and thought are related in an interdependent fashion. तो यहाँ पर बात की जा रही है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस की, एंड इट क्लियरली सेज दैट आवर थिंकिंग इज शेप्ड बाय लैंग्वेज. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस हमारी जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो थॉट्स हैं, वो लैंग्वेज से शेप होते हैं. So this hypothesis is also known as Sapir-Whorf hypothesis. It says that structure of language influence or determine way by people think and perceive the world. So language shapes our cognition and can cause differences in perception across culture depending on language differences. तो हमारी language हमारे सोचने की शक्ति को, हमारे नज़रिए को, दुनिया देखने के नज़रिए को इफेक्ट कर रही है. ओके, इसमें हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं. विद इन दिस हम एक लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की बात करते हैं और एक लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म. ये दो टर्म्स भी हम पढ़ते हैं. लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी सेज लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट. आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके थॉट को इन्फ्लुएंस कर रही है. लेकिन अगर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म थ्योरी की हम बात करें तो वो कहती है लैंग्वेज डिटरमाइन योर थॉट. आपके विचार लैंग्वेज से ही डिटरमाइन हो रहे हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं. तो दिस इज अ वीक वर्जन एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वर्जन. पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज में थिंक डिफरेंटली. डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर हम बोल रहे हैं तो हम सोचने की भी डिफरेंट एबिलिटीज है हमारे पास. बट लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहती है वन कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ लैंग्वेज. जितनी लैंग्वेज जिस हिसाब से हमें पता है आती है उतनी ही हमारी सोच भी रहेगी. This is associated with Sapir and Whorf, and ये Whorf का extreme interpretation है. People who speak language multiple words for snow perceive snow differently. अगर किसी की language में snow के लिए अलग अलग words हैं तो वो snow को अलग अलग तरीके से भी perceive कर सकता है. But on the other hand, if language has no word for time, अगर किसी की language में time के लिए कोई word ही नहीं रखा है तो that person cannot even think about time. तो वो time के बारे में सोच विचार ही नहीं करेगा. थॉट इज शेप्ड बाय बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय लैंग्वेज, ऐसा लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी थ्योरी कहती है. लेकिन लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के हिसाब से आवर थॉट्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय लैंग्वेज. क्रिटिसिज्म इट सपोर्टेड मॉडरेटली बाय रिसर्च एंड इसके केस में इट इज कंसिडर्ड टू एक्सट्रीम एंड लार्जली डिस्क्रेडिटेड. तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्टिक फॉर्म है. ठीक है, तो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी इज मोर एडजस्टेबल फॉर्म है. Now next question says which of the following is our operational definition of intelligence? Intelligence rating by an observing psychologist. Intelligence as an ability to think critically, solve problem and adapt to novel situations. Intelligence as a score on Raven's progressive matrices. आपसे इस क्वेश्चन में ऑपरेशनल डेफिनेशन पूछी गई है इंटेलिजेंस की. ऑपरेशनल डेफिनेशन से यहाँ पे ये मीनिंग है जिसको आप एक्चुअली मेजर कर सको. ऐसी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की से आप फैक्चुअली मतलब ऑब्जेक्टिवली इंटेलिजेंस को मेजर कर सको. तो इंटेलिजेंस को अगर आप साइकोलॉजिस्ट रेटिंग देता है तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑपरेशनली, या फिर हम रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो कि इसका एक टेस्ट है उसके स्कोर्स के बेसिस पर भी ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं. ये एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम, अडेप्ट टू नोवेल सिचुएशन, ये इसका एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, नॉट द ऑपरेशनल वन. सो हेयर द आंसर इज 1 and 3. Next question says which one of the following explain typical intelligence creativity relationship? तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की रिलेशनशिप की बात हुई है. ए यू शेप्ड कर्व,
B inverted U-shape relationship, C linear negative and D none of the above. In the previous questions if you remember हमने बात करी थी कि एक थ्रेशोल्ड लेवल तक जब जब इंटेलिजेंस IQ आपका बढ़ता है तब तक आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ता है, बट बियॉन्ड द पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड अगर IQ बढ़ेगा तो आपका क्रिएटिविटी वहां पे वीक रिलेशनशिप शो करेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल रिलेशनशिप शो करेगा. तो इसका जो समहाउ जो ग्राफ हम बात कर रहे हैं दैट वुड बी इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप. दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली यू शेप बट इट कुड बी इन्वर्टेड यू शेप. आफ्टर सम पॉइंट वो डिक्लाइन करता है या फिर वो प्लेटो कर जाता है. ओके, सो हेयर जब IQ लो है क्रिएटिविटी भी लो है, मीडियम पे यहाँ पे क्रिएटिविटी पीक कर रही है ग्रेजुअली, ठीक है. आप देखेंगे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी भी बढ़ता जा रहा है, बट एक थ्रेशोल्ड के बाद जब इंटेलिजेंस बढ़ता है तब क्रिएटिविटी या तो प्लेटो कर जाता है लाइक दिस, और इट में इवन डिक्लाइन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो that's why we can say it has a inverted U-shape curve. Okay, now next is the matchup question. List A is about mixed model, regression, elaboration, divergent thinking. This list 2 is about creativity, type 1 type 2 intelligence, structure of intellect, emotional intelligence. रिग्रेशन हमने पढ़ा है, जेनसन ने दिया था और जेनसन ने ही टाइप 1 टाइप 2 इंटेलिजेंस भी दिया है. इलेबोरेशन इमोशनल इंटेलिजेंस में हम पढ़ते नहीं, सॉरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है, ठीक है. एंड देन मिक्स मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, एंड इलेबोरेशन हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में पढ़ते हैं. सो दिस वुड बी थर्ड. ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में हम पढ़ते हैं, और इलेबोरेशन यस क्रिएटिविटी का पार्ट है. लेट अस रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वंस. So mixed model emotional intelligence, Baron and Goleman's mixed model include emotional and social competencies. Regression type 1 type 2 intelligence given by Jensen's regression theory which explain group differences using type 1 type 2 intelligence. Then elaboration हम creativity की stages में पढ़ते हैं, Torrance के components में हमने पढ़ा था इसके बारे में. डाइवर्जेंट थिंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो कि गिलफर्ड ने दिया है उसमें हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, विच इज द की प्रोसेस फॉर क्रिएटिविटी ऑल्सो. ओके, सो लेट अस रिवाइज ऑल ऑफ देम. Baron's mixed model of emotional intelligence focus on emotional social intelligence. There are 5 domains in this. One is intrapersonal skill, where we understand our own emotions. Then interpersonal skills, where we can understand others' emotions and maintain relationship. Then we have adaptability, when we can flexibly handle change and problem solving. We can take decisions. Then stress management, when we can handle pressure and impulses, stress tolerance, impulse control. And general mood, where we maintain positive outlook in life, happinessm and optimism. Then we have Goleman mixed model of emotional intelligence. This focuses on emotional competencies required for success in work and leadership. तो यहाँ पे एक हमने बारोन का मिक्स मॉडल पढ़ा इंटेलिजेंस का, जिसमें इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस की बात की गई है. 5 कंपोनेंट्स हमने पढ़े. अब हम गोलमैन का मिक्स मॉडल पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस का, जो कि हमें वर्क लाइफ में हेल्प करता है. इसमें भी 5 कैटेगरीज हैं. वन इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद के इमोशंस को समझना, अपनी लिमिटेशन और स्ट्रेंथ को समझना. देन वी हैव सेल्फ रेगुलेशन, जहाँ पे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं. Motivation, we have certain drive to achieve, we persist to do that in life. Then we have empathy, दूसरों के इमोशंस को समझना. एंड देन वी हैव सोशल स्किल्स, जब हम अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं. वर्क प्लेस में वी कैन डू टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज
Goldsman mixed model of intelligence. Then we have Jensen's type 1 and type 2 intelligence. जेनसन पे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है. सो he explained individual and group differences in intelligence, learning ability and academic achievement. इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिफरेंसेस. तो उसने टाइप 1 और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस में. लेवल जो टाइप 1 है दिस इज लो ऑर्डर एंड जो टाइप 2 है दिस इज हायर ऑर्डर. टाइप 1 इज अबाउट रोट लर्निंग, जो हम याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं. इट इज आर एसोसिएटिव एबिलिटी. और जो टाइप 2 इंटेलिजेंस है इट बिलोंग्स टू रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. टाइप 1 लर्निंग जो है, इंटेलिजेंस है, वो हमें ट्रेनिंग से, एनवायरमेंट से मिलती है. और जो टाइप 2 है वो हमें जेनेटिक फैक्टर्स से मिलती है अकॉर्डिंग टू जेनसन. इट इज मेजर्ड बाय सिंपल लर्निंग टास्क टाइप 1 एंड टाइप 2 इंटेलिजेंस टेस्ट IQ के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. जब हम फॉर्मूलाज मेमोराइज करते हैं दैट इज टाइप 1 इंटेलिजेंस. एंड जब हम उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको हम टाइप 2 इंटेलिजेंस कहते हैं. ओके, सो दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 2 इंटेलिजेंस. देन वी हैव गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, दैट इज SOI मॉडल, जो कि गिलफर्ड ने 1967 में दिया था. ही एक्सप्लेन दैट इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, नॉट अ सिंगल फैक्टर लाइक स्पीयर्समैन G. ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने डायमेंशंस दिए इंटेलिजेंस के. 3 मेन डायमेंशंस आर ऑपरेशंस, कंटेंट, प्रोडक्ट. तो आप ये देख रहे हैं इट इज लाइक अ क्यूब, जो ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट. तो जैसे यू हैव अ क्यूब राइट, तो उसमें आपका हाइट, विड्थ सब कुछ होता है राइट, समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ऑपरेशंस की भी बात की है, फिर उन्होंने कंटेंट की बात की है, फिर उन्होंने प्रोडक्ट की बात करी है. ठीक है, ऑपरेशंस में क्या आता है, व्हाट द माइंड डज. इट इंक्लूड कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन. कंटेंट में आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड लाइक फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल. तो कंटेंट क्या है आपकी इंफॉर्मेशन का, किस टाइप की इंफॉर्मेशन की आप यहाँ बात कर रहे हैं. देन प्रोडक्ट्स में आता है फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है. यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, इस फॉर्म में. तो इनिशियली दे वर 5 into 4 into 6 which is 120 abilities. लेटर ऑन इट एक्सपैंडेड टू 150. तो उन्होंने क्या किया था, फिगर को विजुअल फिगर एंड ऑडिटरी फिगर दो में डिवाइड किया था. तो यहाँ पे एक बढ़ जाता है, तो ये 5 हो गए थे, तो यहाँ पे 150, 150 हो गया था टोटल इनका एबिलिटीज. एंड लेटर ऑन मेमोरी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो फर्दर ऑन इट बिकेम 180. ठीक है, तो वो यहाँ पर 6 हो गया था. तो फाइनली वी हैव 180 एबिलिटीज. इसी में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग की जहाँ पे बात हुई है, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की बात हुई है, इसको गिलफर्ड ने सेंट्रल माना गया है क्रिएटिविटी के लिए, लाइक सेंट्रल पॉइंट माना गया है, ऑपरेशन माना गया है क्रिएटिविटी के लिए. जब हमारे अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी होगी तभी हम क्रिएटिविटी पोजेस करेंगे. Okay, so again this model is also important for you. You need to learn all these dimensions and their sub dimensions. ठीक है, you questions might be asked from this particular concept. Next question says, as per Goleman, motivating oneself component of emotional intelligence include. अभी हमने Goleman का concept किया था emotional intelligence का. सो मोटिवेटिंग वन सेल्फ, इसमें क्या क्या आता है, मार्शलिंग इमोशंस इन द सर्विस ऑफ गोल, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन एंड स्टिफलिंग इम्पल्सिवनेस, बीइंग एबल टू गेट इनटू फ्लो स्टेट, मॉनिटरिंग फीलिंग फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट. तो हेयर all the 3 options are correct except this, because this particular option is talking about monitoring, that is being aware. अवेयरनेस की बात हो रही है यहाँ पे, अपने फीलिंग्स को हम मॉनिटर कर रहे हैं. ठीक है, वी आर जस्ट बीइंग अवेयर. और यहाँ पर हम पूछा गया क्वेश्चन में मोटिवेटिंग वन सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना है. तो A, B and C हम फ्लो स्टेट में एंटर करें, जब हम इतना मोटिवेटेड हो जाए किसी काम में कि हमें कुछ टाइम का भी पता ना चले.
ठीक है, इम्पल्सिवनेस के अंदर ना जाए, ग्रेटिफिकेशन के अंदर एंटर ना करे, ठीक है, वी फोकस ऑन आवर वर्क, और किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ हम अपने इमोशंस को चैनलाइज करें. सो दिस इज द थिंग हेयर. ठीक है, सो गोल ओरिएंटेशन, using emotions to stay focused and committed, delayed gratification, ability to wait for long term rewards and control impulses, flow state, being fully absorbed in work for peak performance and creativity. The next is again a reason assertion question. Assertion says the size of differences in the intelligence scores between fathers and sons explain the group differences in intelligence. Reason says, in Jensen's view, the son tends to be higher or lower in intelligence than their fathers, who are very low and high on intelligence respectively. तो अगेन जेंसन्स की जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, ग्रुप डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस की, वो अप्लाई होती है यहाँ पे. अगेन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड the size of differences in the intelligence score between fathers एंड सन्स. ठीक है, जनरेशन गैप की बात हो गई है, फादर वाला जनरेशन, सन वाला जनरेशन, और उनके बीच में इंटेलिजेंस स्कोर का जो डिफरेंस आ रहा है, इससे हमें ग्रुप डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस का आइडिया लगता है. इन जेनसन्स व्यू, सन टेंड्स टू बी हायर और लोअर इन इंटेलिजेंस देन देयर फादर, who are very low and high on intelligence respectively. So yes, here both statements are true, but the reason is not justifying the assertion here. Why? देखो, assertion में जब हम बात कर रहे हैं तो वो जेनसन की रिग्रेशन हाइपोथेसिस को तो सपोर्ट कर रहा है. एक्सट्रीमली हाई IQ parents have children, the children's IQ tend to regress downward toward the population mean, and when extremely low IQ parents have children, children IQ tend to regress upward towards the mean. This helps explain group differences in intelligence over generations. तो A is true. ठीक है, over generation ये differences हमें दिखाई देते हैं. This describe regression towards the mean. जो reason यहाँ पे दिया गया है वो भी regression towards the mean बात कर रहा है, तो R is also true. But R explain parent-child regression, not the group differences directly. A is about group differences where R is indicative of particularly parent-child differences. ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो डायरेक्ट पेरेंट्स और चाइल्ड का जो कनेक्शन है उसको तो बता रहा है, बट शायद ग्रुप वाले को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. Next question says, major criticism of Thurston's theory of intelligence are based on use of subjective measures, restricted heterogeneity in sample, method of factor analysis. थर्स्टन की जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस, हमने अभी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रिवाइज करी है, उसके मेजर क्रिटिसिजम्स क्या क्या हैं. Here the answer is all the 3 of them. फैक्टर एनालिसिस का मेथड यूज हुआ, हेट्रोजेनिटी इन सैम्पल, रिस्ट्रिक्टेड हेट्रोजेनिटी, सैम्पल में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यूज़ नहीं की गई, एंड सब्जेक्टिव मेजर्स यूज़ किए गए ऑब्जेक्टिव मेजर्स की जगह टू मेजर दोज एबिलिटीज. Okay, so Thurston used mental ability tests that were considered subjective and not standardized. Sample lacked diversity, limited variation, reduced accuracy of factors, and method of factor analysis. His factor analysis were criticized because factors would merge into Spearman's G when a broader sample was used. तो अगर बड़ा sample, broad sample हम use कर रहे थे तो सारे factors एक single G factor में merge हो रहे थे. तो all these 3 were the criticisms of this. This is again the list of 7 primary mental abilities, independent mental abilities. Verbal comprehension, which include understanding language, vocabulary, synonyms. Word fluency, where we generate words quickly. Number ability, which include our arithmetic skills, including speed and accuracy in that.
Then we have spatial visualization, which include mental rotation, imagining objects, even maps. Associative memory, where we remember the paired association, okay, like cup and the saucer. Perceptual speed, where we identify similarity and differences quickly. And reasoning, inductive reasoning, where we identify rules, logical relations, and problem solving. So intelligence is multidimensional. According to this theory, abilities are interdependent but may correlate to each other. Use factor analysis but emphasize multiple factors versus Pearsman single factor. Next question is again assertion reason question. Statement 1 says heritability of intelligence explain variations due to genetics for individuals within a given population. Next reason says earlier the children from deprived families were adopted, the higher their intelligence score will be. फिर से हम एक बार समझते हैं इन्हें. हेरिटेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि जो इनहेरिट कर रहे हैं हम फादर से बच्चे, पेरेंट्स से बच्चे में जो इंटेलिजेंस आ रही है, इट एक्सप्लेन्स वेरिएशंस ड्यू टू जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स की वजह से जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्सप्लेन करती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में. अर्लियर द चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड फैमिलीज वर अडॉप्टेड. तो पहले अडॉप्शन स्टडीज होती थी. जिन फैमिलीज के पास ज़्यादा रिसोर्सेज और सुविधाएं नहीं है वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करते थे और उनके इंटेलिजेंस स्कोर्स को वहाँ पे चेक किया जाता था. ठीक है. तो हेयर both statements are true but they are not supporting each other. So basically the reason talks about influence of environment, क्योंकि जब हम अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चों को तो हम वहाँ पे environment चेक कर रहे हैं, इंटेलिजेंस पे environment का क्या असर पड़ता है. जेनेटिक वेरिएंस हम नहीं देखते अडॉप्शन स्टडीज में, सो वो हेरिटेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है. ओके. सो हेरिटेबिलिटी ऑफ आईक्यू का क्या मतलब होता है? परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन आईक्यू ड्यू टू जेनेटिक्स. अडॉप्शन स्टडीज में हम अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ते हैं टू इम्प्रूव द आईक्यू. तो बेसिकली दिस इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, जहां पर हम देखते हैं कैसे इंटेलिजेंस जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होती है. Next question says, which one of the following explanation may be considered as relatively appropriate for determining intelligence? 1. Main contribution of genetic factors and only negligible contribution of environmental factors. Considerable contribution of genetic factors and some contribution of economic factors. Some contribution of genetic factors and main contribution of social other factors, and major contribution of genetic factors and some contribution environmental factors. तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मैक्सिमम अप्लाई होता है, सूट करता है इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने के लिए. हेयर द आंसर वुड बी लास्ट वन, क्योंकि आईक्यू जेनेटिक फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है और कुछ हद तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है. सो बेसिकली दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स. एंड अकॉर्डिंग टू जेंसन अगर हम बात करें तो 80% लगभग about 80% of variance in IQ is due to heredity, and rest 20% changes are due to environmental factors. Now next question says, out of which the following, which approach used in assessment of intelligence is oldest one? Psychometric, biological, cultural fair, chronometric. कौन सी अप्रोच सबसे पुरानी है इंटेलिजेंस को एसेस करने में? हेयर द आंसर इज साइकोमेट्रिक अप्रोच. तो सबसे पहले जब आईक्यू को मेजर करने की शुरुआत हुई थी तो वहां पे साइकोमेट्रिक्स अप्लाई किया गया था. ठीक है. जो कि सर फ्रांसिस गैल्टन ने शुरू किया था. लेटर ऑन बेरेट ने उस पर काम किया. इट फोकस ऑन मेजरिंग आईक्यू थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसमें हम आईक्यू टेस्ट यूज करते थे. एंड लेटर ऑन बायोलॉजिकल अप्रोचेस, कल्चर फेयर टेस्ट आए और क्रोनोमेट्रिक एनालिसिस भी हुए, जिसमें हम कॉग्निटिव स्पीड और रिएक्शन टाइम दिखा करते थे. बट इनिशियली सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच यूज हुई. Okay. Now the next question says, key issues in the study of environmental factors or effects on intelligence are. क्या क्या issues face करते हैं
जब हम इन्वायरमेंटल इफेक्ट पढ़ते हैं इंटेलिजेंस पे। 1 रिएक्शन रेंज, 2 proximal distance distal causation, 3 collinearity, D environment spare। इसमें से अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट कोलिनियरिटी जो कि एक स्टैटिस्टिकल फिनोमिना है, बाकी तीनों एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हम इन तीनों को ही स्टडी करते हैं इंटेलिजेंस पे एनवायरमेंटल इफेक्ट को पढ़ने के लिए। ओके, सो ए बी एंड डी। रिएक्शन रेंज क्या रहता है? जेनेटिक पोटेंशियल सेट्स अपर एंड लोअर लिमिट। हमारा जो जेनेटिक पूल है, हमें जो पेरेंट से मिला है इनहेरिट होके, उससे हमारी एक अपर लिमिट हम कितना आगे सोच सकते हैं, जा सकते हैं इंटेलिजेंस में, और एक लोअर लिमिट कितना लो जा सकते हैं, सेट हो जाता है। और बट एनवायरमेंट डिटरमाइंस वेदर विद इन द रेंज अ पर्सन, वेयर विद इन द रेंज अ पर्सन विल फॉल। और एनवायरमेंट हमें मदद करता है उस रेंज के अंदर कहाँ हम फिट होएंगे। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कोजेशन, इसका क्या मतलब है? प्रॉक्सिमल इज इमीडिएट इन्फ्लुएंस, आपकी फैमिली का, आपकी स्कूलिंग का इमीडिएट इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है आप पे। और डिस्टल में है ब्रॉड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स जो आपकी इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव एनवायरमेंटल स्पेयर, यानी कि सराउंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस जो आपके अपने जेनेटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं टू शेप योर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ओके, now next is again an assertion reason question. Statement 1 says we use mental shortcuts to solve problem. Reason says problem solving includes thinking. Yes, so, to solve problem we use mental shortcuts. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम थिंकिंग करते हैं, ये बात भी सही है। सो बेसिकली बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट दिस थिंकिंग पार्ट इज नॉट explaining the assertion. Okay, so saying problem solving include thinking does not clarify why we use shortcut. इससे हमें ये नहीं पता चल रहा हम shortcut क्यों यूज कर रहे हैं। Shortcuts are used to save time, reduce cognitive load, or when we lack complete information, not simply because thinking is involved here. Next question says Sternberg triarchic theory identified dash type of components and dash are used to plan, control, monitor in problem solving. So here are 3 type of components. Sternberg की triarchic theory में 3 type of components बताए गए हैं and meta components are used to plan करना, control करना, monitor करना अपनी problem solving के दौरान। तो here correct answer is 3 and meta components are used. So let us revise this whole concept. Sternberg triarchic theory of intelligence identified 3 type of components involved in intelligent behavior. Now what are these 3 components? First one is meta component, which is used to plan, monitor, evaluate प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, इवैल्यूएटिंग में हेल्प करता है। देन वी हैव परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच हेल्प टू एग्जीक्यूट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। जो अभी आपने प्लान किया है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हो वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। फाइनली यू हैव नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट वेयर यू यूज हाउ टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन। नॉलेज एक्विजिशन, तो अब आप कैसे नई इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू रिवाइज द थ्योरी इन डिटेल। स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी आप देखेंगे तो ट्रायआर्किक मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, देर आर 3 आर्क्स ऑफ इंटेलिजेंस, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। One is analytical intelligence, which focus on ability to analyze, compare, evaluate, solve academic और logical problem. इसी के अंदर हम पढ़ते हैं the 3 components: meta component, performance component, knowledge acquisition component. Example include how we solve math problem, puzzle solving, logical reasoning. Then we have creative intelligence, experiential. Okay, this is componential, this is experiential. Here we focus on the ability to use our past experiences to solve new problem. Here we focus on the capacity to deal with novel situation, नई चीजों पे काम करते हैं।
ऑटोमेशन एंड नोवेल्टी प्रोसेसिंग की प्रोसेस है इसके, ठीक है। ऑटोमेटिकली करना और नई चीजों पे काम करना, नोवेल्टी प्रोसेसिंग होना, कुछ नया सोचना। हेयर वी इन्वेंट अ न्यू मेथड, जनरेट आइडियाज और राइट पोइट्रीज। देन वी हैव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल भी कहते हैं। सो हेयर वी फोकस ऑन द एबिलिटी टू अडेप्ट टू रियल वर्ल्ड, कैसे हमें अडेप्ट करना है दुनिया में, एनवायरमेंट में। इसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं। ओके, सो हेयर वी अडेप्ट, शेप एंड देन इवन सिलेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। नए एनवायरमेंट में हम उसमें अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को ढालते हैं। एंड वी इवन सिलेक्ट द एनवायरमेंट जिसकी हमें नीड है। सो एग्जाम्पल के लिए, व्हेन वी मैनेज पीपल, सर्वाइवल स्किल्स, वी टेक वर्क प्लेस डिसीजंस, ओके, वी ट्राई टू अडेप्ट इन अ न्यू वर्क प्लेस, वो सब इसके अंदर आता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। Now, next question says, Sisai's biological theory proposes that there are dash rather than a single underlying dash intelligence. So, there are multiple cognitive potential rather than single underlying general intelligence. यही सिसाई की बायो इकोलॉजिकल थ्योरी भी कहती है कि एक नहीं, बहुत सारे कॉग्निटिव पोटेंशियल्स हमारे पास होते हैं। ओके, so intelligence is not a single general ability. Instead, human possess multiple cognitive potential that develop depending on our, किस पे डिपेंड करता है, हमारे बायोलॉजिकल कैपेसिटी पे, हमारे एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट पे और हमारे मोटिवेशन पे। तीनों चीजों पे फोकस कर रहा है, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है। सो देर आर मल्टीपल कॉग्निटिव पोटेंशियल रेदर देन अ सिंगल अंडरलाइन जनरल इंटेलिजेंस। Next question says, which are the concepts mainly used by Sternberg in his theory of intelligence? Meta component, performance component, factor analysis, selective encoding. अभी हमने स्टर्नबर्ग की थ्योरी रिवाइज की थी, तो आपसे फिर से पूछा जा रहा है विच आर द कंसेप्ट्स मेनली यूज्ड। तो इसमें फैक्टर एनालिसिस को छोड़कर बाकी तीनों को यूज किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4। अब हमने 4 कंपोनेंट पढ़े थे, 3 पढ़े थे, सॉरी, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट इन द प्रीवियस स्लाइड। बट यहाँ पे तो सिलेक्टिव एनकोडिंग दिया है। सिलेक्टिव एनकोडिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ और अ पार्ट ऑफ और अ सबसेट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, ठीक है। जो नॉलेज एक्विजिशन अभी हमने पढ़ा था, तो जब हमें कोई नॉलेज लेनी है, कोई नई इंफॉर्मेशन लर्न करनी है, तो हम पहले सिलेक्टिवली एनकोड करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट और द स्टेप ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। हम पहले सिलेक्टिवली चूज करते हैं हमें किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है और उसको फिर प्रोसेस करते हैं। तो सिलेक्टिव एनकोडिंग इज पार्ट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। ओके, सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ दिस। फैक्टर एनालिसिस स्टर्नबर्ग ने यूज नहीं किया था, वो स्पीयरमैन, थर्स्टन और गिल्डफर्ड ने यूज किया था अपनी साइकोमेट्रिक थियरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which set of 3 approaches is more relevant to study the impact of genetic factors on intelligence? 1. Correlation between sibling. 2. Correlation between identical twins reared apart. 3. Adopted child studies. And 4. Correlation between parents and children. कौन सी अप्रोच यूज की गई है जेनेटिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए? किस पे? इंटेलिजेंस पे। तो यस, सिबलिंग्स के बीच में कोरिलेशन, आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में कोरिलेशन, जिनको अलग अलग पाला गया है वहां पे आप जेनेटिक इफेक्ट देख सकते हो, एंड अडॉप्टेड चाइल्ड स्टडी पे भी देख सकते हो। बट पेरेंट और चिल्ड्रन का जो कोरिलेशन है वहां पर इसकी नीड नहीं है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3 हेयर। सो कोरिलेशन बिटवीन सिबलिंग, सिबलिंग जनरली शेयर 50% ऑफ जीन्स, इसलिए वहां पर भी आप जेनेटिक इन्फ्लुएंस देख सकते हो इंटेलिजेंस का। कोरिलेशन बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड अपार्ट, आइडेंटिकल ट्विंस में 100% सिमिलैरिटी होती है जेनेटिक लेवल पे। अगर उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में पाला जाए तब भी आप उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फ्लुएंस देख सकते हो इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी।
अडॉप्टेड चाइल्ड स्टडीज में क्या होता है, वी कंपेयर सिमिलैरिटी टू बायोलॉजिकल वर्सेस अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो इसमें हम जो रहता है इनके एनवायरनमेंट की स्टडी भी हो जाती है यहाँ पे, और उनका बायोलॉजिकली क्या रहता है वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकली और जो एनवायरनमेंट था अडॉप्टिव, उनके बीच में हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। Next question says, out of the following theories of intelligence, which one is regarded as the latest one? सबसे latest theory बतानी है आपको। Sternberg theory, Mayer and Salve theory, Jensen's theory, Cattell's theory, and the latest one is Mayer and Salve theory. So this is the timeline. The oldest one was Cattell's. It was given in 1940s to 1960s, fluid and crystallized intelligence concept. Then Jensen gave 1969 onwards. And then Sternberg gave in 1980 the triarchic theory, and then Mayer and Solvay in 1990 gave the emotional intelligence theory. Next question says, it is a reason assertion question. Assertion says, in cross-sectional research to study the developmental process of intelligence, age and cohorts are confounded. According to Flynn effect, each successive generation of people is more intelligent than the preceding one. So here both the statements are true and R is actually the correct explanation of A. How come? In cross sectional research, यानी कि जो हम एक ही पॉइंट पे डिफरेंट एज ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस, तो वहां पर जो एज है और जो कोहोर्ट है, लाइक डिफरेंट कोहोर्ट, यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका अपना ग्रुप हो गया, तो उनका जो कोहोर्ट इफेक्ट है और जो उनकी एज का इफेक्ट है वो कंफाउंड हो जाता है, राइट। एंड डेफिनेटली फ्लिन इफेक्ट जो कह रहा है, एक सक्सेसिव जनरेशन के बाद लोगों का इंटेलिजेंस पुराने लोगों से बढ़ जाता है, तो ये इसी को एक्चुअली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, इसी स्टेटमेंट को। Okay, so Flynn effect shows that cohort differences actually exist, करते हैं cohort differences exist, जो कि confounding हो रहे हैं cross sectional study में। So cross sectional differences in IQ may reflect generational IQ changes rather than real aging changes. तो this is generational IQ changes, aging changes नहीं है वो, generational IQ changes हैं, which explain why age and cohort are confounded here. Now, next question says, Cattell's GFGC theory of intelligence mainly focused on first order factor of abilities, second order factor of abilities, third order factor of abilities, and higher order factor of abilities. Answer is second order factors of abilities. जो कटेल का फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स हैं। स्पीयरमैन ने भी फैक्टर एनालिसिस किया था GNS फैक्टर देने के लिए, ठीक है, जो 2 फैक्टर थ्योरी थी, तो यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर फैक्टर अप्लाई हुआ था। कटेल ने जो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज का कॉन्सेप्ट दिया वो भी सेकेंड ऑर्डर फैक्टर्स हैं, और जो थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी वो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स थे विदाउट एनी फर्दर रोटेशन, ठीक है। इनिशियली जो आया था उनका रोटेटेड आउटपुट वो फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स का ये था। फर्स्ट ऑर्डर को फर्दर रोटेट करा जब उन्होंने, तो स्पीयरमैन ने GNS का कॉन्सेप्ट दिया और कटेल ने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, next question says, the inferential technique that A borrowed his father's car during a college vacation and smashed it after the party A attended. Expected reaction of his father runs through A mind and generates several possibilities. It is an example of which shortcut or which heuristic, ठीक है। एक बच्चे ने कार बोरो करी पापा की, कॉलेज वेकेशन पे गया, कार एक्सीडेंट हो गया, स्मैश कर दी। अब उसके बाद दैट चाइल्ड इज थिंकिंग अबाउट कि हाउ द फादर विल रिएक्ट आफ्टर नोइंग दिस, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड रिएक्शंस हैं उसके फादर की, वो उसके माइंड में चल रहा है। तो ये जो शॉर्टकट उसका ब्रेन अभी ले रहा है कि क्या क्या होने वाला है उसके साथ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस टाइप के ह्यूरिस्टिक का एक एग्जाम्पल है? अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, कंजंक्शन ह्यूरिस्टिक और सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। हियर द आंसर इज सिमुलेशन ह्यूरिस्टिक। Let us revise here all the heuristics once. One is availability heuristic.
means when we judge likelihood based on how easily examples come to our mind, when something is easily available to us, हमने recently ही कुछ पढ़ा था अभी, तो वो ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एग्जाम्पल आता है किसी चीज के लिए। मेमोरी के पास जो चीज इजीली अवेलेबल होती है हम उसको शॉर्टकट में यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, थिंकिंग दैट प्लेन क्रैश हैपन मोर ऑफन बिकॉज न्यूज कवर्स देम फ्रिक्वेंटली। अब क्योंकि न्यूज में अभी अभी आपने प्लेन क्रैश देखा था तो आपने कहा अरे प्लेन क्रैश तो होता रहता है, बहुत ही कॉमन बात है। सो वी ओवर एस्टिमेट रेयर बट ड्रामेटिक इवेंट्स, रेयर इवेंट जो कि एक्चुअली नहीं होता है हम उसको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। देन वी हैव रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, here we judge something based on how similar it is to a stereotype or a prototype. For example, assuming a quiet person is a librarian instead of a salesperson. आपके neighborhood में कोई नया बंदा आया है, ठीक है, और वो चुप चुप रहता है, ज्यादा बातें नहीं करता, तो आपने एज्यूम कर लिया ये जरूर कोई लाइब्रेरियन होगा, ठीक है, जो शांत रहता है। आपने एज्यूम कर लिया, रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसका चुप रहने को आपने उसके लाइब्रेरियन होने से जोड़ लिया, राइट। सो और जबकि हो सकता है वो रियलिटी में एक सेल्स पर्सन हो, बिल्कुल ऑपोजिट। सो वी इग्नोर बेस रेट स्टैटिस्टिक्स है। सिमुलेशन हेरिस्टिक में क्या होता है, वी प्रिडिक्ट आउटकम बाय मेंटली इमेजिनिंग सिनारियोज एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे अभी किया हमने कि कार स्मैश करने के बाद वी आर थिंकिंग कि क्या क्या रिएक्शन हो सकता है फादर के एंड पे। वी आर कंपेयरिंग द पॉसिबिलिटीज, सो वी आर जस्ट प्रिडिक्टिंग द आउटकम्स मेंटली, इमेजिन कर रहे हैं इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस को। सो इट इज बेस्ड ऑन काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, इफ ओनली ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। देन वी हैव एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक, वी रिलाई हेविली ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसको हम एंकर बनाते हैं एंड देन एडजस्ट इनसफिशिएंटली। इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है मार्केट में शॉपिंग करते वक्त, बार्गेनिंग करते वक्त। तो आप किसी एक शॉप पे गए, आपने कुछ मांगा उनसे और उसका प्राइस पूछा, उन्होंने कहा ये 500 का है। अब आप दूसरी शॉप पे गए, आपने सेम प्रोडक्ट के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 400 का है। तो अभी आपने 500 का पूछा, दूसरी शॉप ने 400 का दिया, तो आपका एंकर अभी 500 था, अभी 400 हो गया, उन्होंने उससे कम में दिया। अभी आप दूसरी शॉप पे गए, सेम प्रोडक्ट पूछा, उन्होंने कहा 550 का है, तो अभी तो आप 400 का एंकर लेके चले थे, ठीक है। तो उनको आपको पता लगा अरे ये तो 150 रुपीज महंगा दे रहा है। या उन्होंने मान लो आपसे कहा कि नहीं नहीं मैं ना 450 तक दूंगा, उससे नीचे नहीं करूंगा, तो आपको पता है पुरानी शॉप पे आपको वही चीज 400 में मिल रही थी। तो दिस इज एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक। तो यहां से आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल गई, ठीक है। तो बट इट मे लीड टू बायस डिसीजन क्योंकि आपका जो एंकर है वो चेंज होता रहता है इसमें, एंड यू कीप एडजस्टिंग। Then you have conjunction anchor. We believe specific combined events are more probable than single general events. So here we think Linda is a feminist bank teller is more likely than Linda is a bank teller. हम अपने आप से conjunction add कर रहे हैं उसके अंदर, हमें कि ऐसा लग रहा है हमारे मिसकंसेप्शन की वजह से, ठीक है। बिकॉज उसका नाम लिंडा है, वी फील कि वो एक फेमिनिस्ट बैंक टेलर है, वो सिंपल एक बैंक टेलर भी हो सकती है, ओके। देन कंफर्मेशन बायस, वी ऑल नो, ये हम पढ़ चुके हैं। कंफर्मेशन बायस, मेंटल सेट ऑफ फिक्सेशन एंड फंक्शनल फिक्सेडनेस, ठीक है। कंफर्मेशन बायस में हम अपने बायस को कंफर्म करते हैं और जो एक्चुअल एविडेंस होते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं। मेंटल सेट में हम पुरानी ओल्ड स्ट्रैटेजीज को ही फॉलो करते हैं जिससे क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। फंक्शनल फिक्सेडनेस में हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कोई एक चीज को हम किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है कि हम ये भी नहीं देख पा रहे एक ब्रिक को हम पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग रेफर्स टू universal to universal, universal to particular, particular to universal and particular to universal. Answer is B and D. That means universal to particular is deductive, particular to universal is inductive. So these are two types of reasoning. Deductive reasoning, here we apply general principles to specific cases. In inductive what happens, हम जनरल प्रिंसिपल्स से हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। कोई जनरल नॉलेज, जनरल इंफॉर्मेशन है, उससे हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं इंडक्टिव में। डिडक्टिव में जनरल प्रिंसिपल्स
को अप्लाई करके हम स्पेसिफिक डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिकली कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसको जनरलाइज कर रहे हैं, उससे एक जनरल प्रिंसिपल दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज प्रिज्यूम्ड टू मेजर crystallized intelligence, convergent thinking, general intelligence and spatial reasoning. Here the answer is general intelligence. तो रेवन का जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है जिससे IQ मेजर किया जाता है वो ओवरऑल जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करता है. Okay, it is a non-verbal test designed to measure general intelligence, particularly intuitive ability, which is closely related to fluid intelligence, where we have ability to reason and solve the novel problems. Although Raven also involve convergent thinking and spatial reasoning, these are secondary aspects. तो major जो purpose है वो इस टेस्ट का general intelligence को measure करना ही रहता है. Then we have the matchup question. Here inductive reasoning, bottom up processing, deductive reasoning and top down processing. Here the answer is A is 3, developing a general principle. B is 1, bottom up is analyzing and combination of thoughts. C is 4, deductive reasoning is using a principle for conclusion. And top down में हम interpretation of ideas and concepts. ठीक है. So basically inductive reasoning में हम क्या करते हैं, we develop a general प्रिंसिपल, हम स्पेसिफिक से एक जनरलाइज प्रिंसिपल बना रहे हैं. ठीक है. बॉटम अप में हम क्या कर रहे हैं, वी एनालाइज एंड कंबाइन थॉट्स, वी बिल्ड परसेप्शन फ्रॉम इंडिविजुअल एलिमेंट, बाहर से इंफॉर्मेशन लेके आप नया थॉट बिल्ड कर रहे हैं. डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम एक प्रिंसिपल से कंक्लूजन की तरफ, एक जनरल प्रिंसिपल से, जनरलाइज प्रिंसिपल से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं. ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. टॉप डाउन में वी आर मूविंग फ्रॉम इंटरप्रेटिंग आइडियाज एंड कंसेप्ट्स इंटरनली. पहले अपनी जो प्रायर नॉलेज है, जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रेन में है, माइंड में है, हम उसको यूज करते हैं. उसके बेसिस पे हमें जो नई चीजें मिल रही है उसको इंटरप्रेट करने की, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम उसको टॉप डाउन बोलते हैं. ओके. Now next question says, it is again assertion reason question. Children have remarkably ability to mental representations of the world in the form of language. Reasoning and problem solving are the ways manipulating the idea. Yes, both are true. बच्चों के पास mental representations होता है, लैंग्वेज के फॉर्म में they do represent ideas. ठीक है, अपने माइंड में. रीजन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इससे हम आइडियाज को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ये भी बात सही है. लेकिन ये जो रीजन दिया गया है उससे बच्चों का ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है उसको अफेक्ट नहीं हो रहा है. ओके. सो बेसिकली जो यहाँ पर हम जो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो द एबिलिटी टू डिस्क्राइब्ड इन A, forming mental representation via language is prerequisite for activities described in R, reason and problem solving. But R यहाँ पे explain नहीं कर रहा है कि कैसे बच्चे language based reality representation अपने mind में बनाते हैं. ठीक है. तो basically mental representation through language develop primarily from symbolic capacity and social interaction, not because of reasoning and problem solving. तो यहाँ पे ये करेक्ट रीजन नहीं है. Now next question says, a listener totally rejects the conclusion that the death penalty is justified for the purpose of preventing further social evil, despite he cannot readily refute the premises the speaker is presenting for his conclusion. His reasoning is biased. Why? ठीक है. तो क्या हुआ, एक लिसनर ने टोटली रिजेक्ट कर दिया कंक्लूजन दैट डेथ पेनल्टी इज जस्टिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग फर्दर सोशल एविल. तो वो ही इज जस्ट टोटली रिजेक्टिंग जो भी एविडेंस दिया जा रहा है, जो भी बात बोली जा रही है डेथ पेनल्टी के लिए, जो भी रीजन वहां पे दिया जा रहा है उसको वो टोटली
इग्नोर कर रहा है, उसका जो रीजनिंग वो कह रहा है बायस्ड है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कंफर्मेशन बायस। वो क्या अप्लाई कर रहा है यहाँ पे? कंफर्मेशन बायस। So confirmation bias refers to tendency to interpret or reject information in a way that confirms one's own pre-existing belief or attitude. ठीक है, चाहे उनको कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी एविडेंस भी क्यों ना दे दो। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो लिसनर था उसने कंक्लूजन ऑफ डेथ पेनल्टी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जबकि कोई लॉजिक नहीं था वहां पे रिफ्यूजन का। दिस शोज दैट रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन बायस्ड रीजनिंग शेप्ड बाय एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड नॉट द रैशनल इवैल्यूएशन। ओके, एंड अगेन मूड स्टेट्स की यहाँ पे बात हो अगर, या उसके ड्यू टू हिज बिलीफ ऑल्दो इसके कंफर्मेशन बायस के अंडर समवेयर इट इज देयर, पर ये पार्टली ट्रू होगा यहाँ पे। एंड हिंडसाइट बायस में वी थिंक दैट आई न्यू इट ऑल अलोंग, मुझे सब कुछ पहले से पता था, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है हिंडसाइट वाला, ठीक है। एंड इमोशनल डिसीजंस आर ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्टिंग है। Now the last question says, which of the following is a group decision making technique? 1. Brainstorming. 2. Ordinal group technique. 3. Risky shift. And 4th, random shift. Here the answer would be brainstorming. So brainstorming में क्या होता है? There is a structured method where group members freely generate ideas without any criticism to solve problem. तो बिना किसी criticism के डर के we just generate number of ideas, quantity of ideas. ऑर्डिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड टर्म तो नहीं है, बट इट रेफर टू रैंकिंग बट नॉट स्पेसिफिकली अ डिसीजन मेकिंग मेथड। इसमें हम रैंकिंग देते हैं, बट ये डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट टेक्निक नहीं है। रिस्की शिफ्ट एक ऐसा फिनोमिना है वेयर ग्रुप्स टेक रिस्कियर डिसीजन दैन इंडिविजुअल। एज अ ग्रुप हम एक कोई रिस्की डिसीजन लेते हैं, उसको रिस्की शिफ्ट कहा जाता है। और रैंडम शिफ्ट भी अगेन डिसीजन मेकिंग में कोई known technique nahi hai. So this is it for today's class. Thank you.